Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aziza Munir, and we will be discussing today the second very important analysis in research methodologies, which is developing a theoretical framework. Now, in our last lecture, we have considered that we have just taken into account in detail that what actually is the purpose and what is actually the need of conducting research. We have also taken into account that what is business research and what are the objectives which are underlying in a business research. Now, whenever we are conducting business research, we are considering, or we are in a situation where we might exist in a complex situation. Now, from complex situation, I mean that there exists intervention of multiple set of variables, or there is intervention of multiple key areas which affects our situation or which affects the business environment, out of which we need to analyze that which particular area is directly associated with our identified problem, and which is just creating a kind of you can say or you can say that this is a symptom problem. So that is something which we have already taken into account. But when you are analyzing research perspective, and once you are focusing on research objectives, that what is the major purpose of conducting research, you have to focus that what are the key areas which need to be indicated, and the relationship has to be established with the objective oriented area from where we are seeking solution. So these two areas need to be met, these two areas or these two questions need to be met very finely once you are conducting business research. So in today's class, we will be talking about what is the research process, and we will be connecting this research process with the theoretical framework, where the importance of generating theoretical framework lies in the process, and how we configure it, and how we basically derive towards the theoretical framework, what actually it means, what is the you can say the features and the major areas of concerns lies in theoretical framework, which type of variables need to be addressed while developing a theoretical framework, what is when you're developing a theoretical framework, or once you're talking about model development, there is a very, very strong relevance of literature review, of literature which we have, of the previous studies, of the empirical work which is already conducted. There is a very, very strong relevance of that. So we will be analyzing that what this relevance need to do with the development of the theoretical framework, and where it basically encompasses, where it basically comes, where it is seen, the empirical study, where it is seen in the literature, in the theoretical framework. So that is something which we have to talk about today. So let's start with the research process. That we have in our last lecture, we have analyzed this model, this picture before, that from the broad problem area we collect some preliminary data sources, or from the broad consideration of the problem broadly, we take into account, or we can say that we filter our problem, or we filter our area of study by collecting some preliminary knowledge for that. So that preliminary knowledge is something which is the strong evidence of the empirical work which is already conducted in the field of research, that what have been done so far once you are taking consideration the problem. So in that particular problem, in that particular area, what has been covered so far, हमें कौन सी चीज़ें, कौन से जो factors हैं जो इससे पहले discuss हो चुके हैं, और वो जो factors इससे पहले discuss हो चुके हैं उनका क्या impact आ रहा है हमारी study के ऊपर या हमारी problem के ऊपर, जो हमने पिन पॉइंट की है, जो हमने फिक्स की है, उसकी बेसिस के ऊपर इन दोनों चीज़ों की जो
बेसिस है उसके ऊपर हम डिराइव करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। अगर तो एम्पिरिकल स्टडी इतनी साउंड, इतनी सिक्योर, इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसमें मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है रिसर्च करने की, तो हम अपनी रिसर्च को इसी पॉइंट से वाइंड अप कर लेते हैं। हम इससे मज़ीद आगे नहीं जा सकते क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग से ही हमें ये पता लग गया है कि ऑल द क्वेश्चंस which we are about to address in our broad problem area have already been considered too widely, too broadly in all possible spectrums in the empirical work. So that is something which shows that what has already been done in the research area, and what is the gap, where the gap exists. Wherever the gap exists of whatever nature, we can fix our attention towards that gap and relate our problem area with that gap. Now the gap we have already discussed in previous lecture, that the gap is something which basically provides us an opportunity for research. ये जो gap हमारे पास exist करता है, ये हमें opportunity provide करता है research करने की, because in that particular area work has not been conducted so far. So when we are analyzing that there exists a gap between the ideal and real state of existence, so there is some margin of opportunity on the basis of which we can initiate our work, on the basis of which we can initiate our problem statement, we can design our problem statement. तो ये जो एरिया फोकस्ड फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, या वो जो एरिया जिसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं विद द एम्पिरिकल वर्क, दिस एक्चुअली डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम एरिया, दिस एक्चुअली डिस्क्राइब्स द रिसर्च प्रॉब्लम. So whenever we are talking about the research problem, this describes the opportunity, and this describes the gap in the existing research work, in the existing empirical study, and from that base we can continue with our future researches. So when we come towards a problem statement, now what is actually a problem statement? Now we are in a position to describe a difference between a statement and a question. That whenever we are addressing a question, that has to be interrogative in nature. So, but the outcome of problem statement as well as the question might be the similar one. But the presentation of problem, or the presentation of area on which we are about to study, about to conduct study, is something which differentiates in both the cases. While you are discussing a question, a research question, this particular this particular statement is in the form of a question, and this question addresses basically the situation which we are about to discuss. For example, जब हम डिस्कस करना चाह रहे होते हैं कि what is the impact of quality of work life and what is the impact of job satisfaction over productivity, तो इसका मतलब ये है कि हम जॉब सेटिस्फेक्शन को डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रोडक्टिविटी के साथ, और हमने स्टेटमेंट को इंटेरोगेट कर दिया है, हमने स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज द relationship, or what is the impact of job satisfaction with productivity. So here we are giving an interrogative approach, but when we are talking about a statement position, we might say that job satisfaction is strongly related with productivity. So in that case, or job satisfaction has its impact on productivity. तो यहाँ पर जो second case हमने discuss किया कि job satisfaction is having an impact on productivity or is related to productivity, उस case में हमने एक statement की form में, हमने एक general workable statement की form में अपने area of consideration को present किया है. But in the previous case we have presented our area through an interrogative approach. So both of these approaches makes a difference in presentation your research area, but the result or the outcome of both the statements might be the similar one. After analyzing the problem statement, now we are in a position to develop a theoretical framework, which is our today's major area of concern. कि हम theoretical framework बनाते हैं किस चीज़ की basis के ऊपर? Basically we talk about three areas when we are developing our model and once we are developing our theoretical framework. First approach is the consideration of broad problem area.
On the basis of broad problem area, we conduct preliminary study. On this preliminary study, or the empirical know-how of the research which has already been conducted, we develop a relationship, or we develop a kind of you can say presentation to our work which we are about to conduct in future. So this is in the form of a problem statement. So these three areas are basically considered, these three area approaches are basically analyzed before developing a theoretical framework. So theoretical framework is developed on the basis of problem statement, and this problem statement is derived on the basis of empirical work, which is the literature review and the observation of the broad problem area. So that is I can say the preamble, or that is something which is the introductory approach towards developing theoretical framework. Now what basically is derived and what basically is obtained from the literature review, or once we are conducting the empirical work, हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं जब हम लिटरेचर को डिस्कस करते हैं. So basically जब हमने लिटरेचर के ऊपर बात करनी होती है तो उस केस में हम एक जनरल सी अप्रोच डेवलप करते हैं. उस अप्रोच में हम ये मेंशन करते हैं कि विच नंबर ऑफ आर्टिकल वी आर स्टडिंग, secondly meaning the serial number of the article. Secondly हम analyze करते हैं कि what is the title of the article, where this particular article has been published. वहाँ से हमें थोड़ा सा उसका प्रूफ पता लगता है कि इसकी वर्थ, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की या इस पर्टिकुलर रिसर्च की वर्थ कितनी है. इफ़ इट इज़ पब्लिश इन अ गुड जर्नल, इन अ गुड रिसर्च पेपर, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फाइंडिंग्स की और उसकी अप्रोच की वर्थ बहुत ज़्यादा है इन द एम्पेरिकल स्टडी, और हम उसको अपनी स्टडी में कंसिडर कर सकते हैं. कंसिडर तो हम उस काम को भी कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है, लेकिन उसका फिर इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाई नहीं होता. सो दैट इज़ वाई वी यूजुअली टॉक अबाउट दोज एरियाज, वी यूजुअली कंसिडर दोज पॉइंट्स, दोज जर्नल्स विच आर हाईली रैंक्ड और रैंक्ड मॉडरेटली इन द रिसर्च एरिया, एंड द पब्लिश मटीरियल इज ऑफ is worthable. So that is something which we used to analyze in once we are discussing the literature analysis. Secondly, we talk about that what are the key areas which are discussed in this particular article. जब हमें ये पता है कि year of publication क्या है, कौन से journal में ये publish हुआ है, किस title से ये article मौजूद है इस particular journal के अंदर, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर key areas जो address हुए हैं वो कौन से हैं, किन एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन हुई हुई है. जिन एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन होगी वो हमें बेसिकली बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम स्टडी हुई हुई है इस आर्टिकल में, और उस प्रॉब्लम की बेसिस के ऊपर उसने किस तरह से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया है, उस एम्पेरिकल स्टडी ने किस तरह से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया है, और उन वेरिएबल की डिस्कशन में उन वेरिएबल्स को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से सैंपल कलेक्ट किया है, कौन सा यूनिट ऑफ एनालिसिस डिस्कस किया है, और उस यूनिट ऑफ एनालिसिस में डेटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन सी अडॉप्ट की हैं. फिर डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के बाद जब उसके पास डेटा सिक्योर हो गया तो फिर किन फॉर्म्स में डेटा की इंटरप्रिटेशन या डेटा के एनालिसिस किए गए हैं, एंड हाउ द रिजल्ट्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड. Once we have obtained the results, so we are able to deduce something from the research in the form of presenting conclusions. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हमें पता लगती हैं once we are considering the theoretical, once we are considering the literature review or the empirical study. ये हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है. जब हम मल्टीपल आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और मल्टीपल एरियाज को स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पता लगती है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है उसके अंदर कितनी वेटेज होगी फ्यूचर में, या उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं. जितनी वाइड इम्प्लीकेशंस होंगी आपके रिसर्च एरिया वर्क की, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा आपका काम. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एविडेंटली taken from the previous studies, from the empirical work which is already considered. So उस केस में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल जाता है कि किस तरह से हम अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो कटिंग इन शॉर्ट कि whatever the
whatever is the article under consideration is, you should know that what is the title of it, what is the year of publication, in which journal it has been published, what are the variables which have been, what is the problem which is addressed in the article, what are the probable variables which have been studied in that spectrum, and then which areas or which sample units have been taken for supporting the model, which type of data collection techniques have been adopted. और जहाँ से जब हम data collection techniques की बात करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी items develop हुई हैं, variables को हमने किन items के through explain किया है, और उन items के through हम जब अपना questionnaire develop करना शुरू करेंगे या जब हम अपना tool रिसर्च का डेवलप करना शुरू करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं या कौन से रेलेवेंट एरियाज हैं और रेलेवेंट आइटम्स हैं जिसके मुतालिक हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए. तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग relationship of developing a strong empirical study once initiating while initiating a research work. तो जितनी ज़्यादा strong हमारे पास empirical study होगी उतना ज़्यादा strong हम develop कर सकेंगे अपना model, उतना ज़्यादा strong हम अपने variables को describe कर सकेंगे और we will be feeling more confident once we are developing multiple items and once we are explaining our variables towards describing the problem. So that is something which is the role of previous work, which is the role of identifying the literature prior to conduct their study. अब जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है. उसके अंदर या तो ये हो सकता है कि हम एक एग्जिस्टिंग एरिया को उठाकर, हम एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को उठाकर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करें. मीनिंग अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस लो है तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, हम उससे रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज को डिस्कस करना चाह रहे हैं विच माइट रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी और इन लो परफॉर्मेंस. सो दैट इज एन एरिया विच इज एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं. कुछ ऐसे एरियाज के ऊपर हम रिसर्च करते हैं जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं. मीन्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज द करंट सिचुएशन. एक तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और हमने आइडेंटिफाई करने हैं वो की एरियाज जिनकी बेसिस के ऊपर वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है. तो वो हमें एरियाज अगर हिडन है या वो हमें डिस्क्लोज नहीं हुए हुए, सो वी वांट देम टू बी डिस्क्लोज, वी वांट देम टू बी नोन. सो इन दैट केस वी वांट टू बी डिस्कस्ड थ्रू रिसर्च. But in second case, there might be a situation when we want to improvise our situation, when we want to improvise our current position, like that why people won't come in time to their workplaces. अगर हमने ये identify करना हो कि workplaces के ऊपर productivity ठीक है, performance ठीक है, relationship भी ठीक है, लेकिन people are not coming in time. So what might be the reasons? So that is something which is an improvisation to the current situation. So once the second type of problem might address some techniques for improvisation, the current methodology or the current approach. Another kind of problem or the third kind of problem is the conceptual issue. कंसेप्चुअल इशू के अंदर हमें ज़रूरत होती है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कुछ बेहतर थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकें, कुछ बेहतर थ्योरी डेवलप कर सकें. ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी कुछ काम हुआ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने अभी तक ये कॉन्सेप्ट पूरा मैच्योर नहीं हुआ. तो अगर कॉन्सेप्ट पूरा मैच्योर नहीं हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल नॉलेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ा एक नया सा कॉन्सेप्ट है. हम टाइम मैनेजमेंट की तो बात करते हैं या सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं या वर्क फोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है. तो इस मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या अभी तक हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के फॉर्म में हैं कि अभी तक कौन सी चीज़ें हम नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर डाल सकते हैं. सो उसके लिए हमें मज़ीद थ्योरीज डेवलप करने की ज़रूरत होती है या मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत होती है, जहाँ से हम एनालाइज कर सकें कि
इस पर्टिकुलर इशू में अभी को अभी हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या इस एक पर्टिकुलर इशू के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम एम्बेड कर सकते हैं जो कि इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट इज समथिंग विच एक्सप्लेन्स मोर अबाउट अ कॉन्सेप्ट. सो अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल इशू बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं. एंड अनदर टाइप, द फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज द एम्पिरिकल प्रॉब्लम, जहाँ पर जो रिसर्चर है वो सिर्फ एम्पेरिकली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज हैं जॉब पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जहाँ से हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड मटेरियल को डिस्कस कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या हम अटेंडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो द रिसर्चर इज जस्ट इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटिंग ऑल द previous empirical work and deduce something from that empirical study. That whatever has been studied so far will be combined in a way, will be integrated in a way that becomes meaningful. So that won't do something towards data collection and towards identifying the variable factors, or towards going towards the itemization of the variables. No, but whatever have been done so far will be integrated in a way that it gives some meaning to your issue or to your problem which is about to be, which is in consideration, which is studied. तो यहाँ पर हमें 4 किस्म के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं. One is the existing problem, one is the existing issue. Second is the one problem is based on something which is already there in already seen, and we need to know more about it, so that is an existing problem. Sometimes we know that what is existing in nature, and on the basis of existing problem we need to create improvisations in the current techniques, in the current formats. So whenever we are talking about improvisations, we are focusing towards the second type of problem statement. Then there might be the concept building statements, where we talk about that in that particular model, in that particular issue, there is a room for adding some more definitions in it, adding some more, embedding some more concepts, embedding some more material in it, which gives more strong picture to the given approach. So that is a concept based or conceptual based problem statement. And then is the empirical work, which is in which the researcher is just interested in integrating the empirical studies, where in order to give some meaning to the previous work. So now we are referring towards the theoretical framework, which is our main focus for today, and for that we have conducted enough preamble so that you can able to understand that what actually we try to disclose. So without that study, if we just plunge towards the theoretical framework, this might give some ambiguous situation that from where it is come, and what is the relevance of developing a model, and what is the relevance of developing a framework towards the research process. So now we have streamlined that what is there, what is already there, and what provides us with the basis of developing the theoretical framework. And on the basis of these areas which we have already considered, we are now in a position to work for, to analyze, to study basically the theoretical framework. So in conceptual model of how one theorizes the relationship among the several factors that have been identified as important to the problem. तो जब भी हम यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल मेंशन है, उसके अंदर एक कंसेप्चुअल मॉडल डेवलप हुआ हुआ है. जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो एक कंसेप्चुअल मॉडल के ऊपर बेस कर रहा है, जहाँ पर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इस तरह से रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू ऐड सम मोर मटेरियल इन डेफिनेशन, वी वांट टू ऐड सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डेफिनेशन टू नो सम मोर एरियाज ऑफ कंसर्न. दैट इज द न्यू प्रोडक्ट सक्सेस affects the stock market price. That example reveals that what is the impact of new product success, और new product की presence से new product की performance से क्या impact create हो सकता है stock market की price के ऊपर. So if you're interested to notice the stock market price और stock market का जो आउटकम है उसके ऊपर अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं, so for this we have to study one very important factor, which is the performance of a new
product in market. So if a new product is going in success, what will be the impact of that success over developing the stock market price, and if it is not going in success, then what might be the impact. So we are totally in a position to describe कि जो stock market की price है वो depend करती है performance of the new product के ऊपर, if either in the positive or negative form. So we will be assigning values to the new product success or the new product performance and deducing results towards the stock market price. So here we have identified two areas of variables, that is independent and dependent. Usually variables को हम चार categories में divide करते हैं. One is the dependent variable on which the study have been conducted. एक वो area, एक वो variable जिसके ऊपर हमने सारे के सारे arrows को fix करना है, जिसके ऊपर हमने impacts draw करने हैं, जिसके ऊपर हमें results identify करने हैं कि इस situation में जिसके अंदर multiple variable factors मौजूद हैं, हमारा area of consideration या हमारा area of study किस तरह से affect होता है. That is basically the dependent variable, जो कि depend करता है बहुत सारे variable factors के ऊपर, बहुत सारी changes के ऊपर जो कि environment में exist कर रही हैं. Independent variable वो variable होता है जिसको हम खुद से values assign करते हैं, जिसको हम खुद से approach करते हैं और उसका impact reduce करते हैं dependent के ऊपर. But while identifying the relationship of independent and dependent variable, we might get a room to affect this relationship, and this relationship is affected through moderating and intervening variable. So in moderating variable, we have already discussed that the moderating variable is the one which affects the relationship of independent and dependent variable and shown through a diamond shape, right? So that is something which affects the both the variables, meaning independent and dependent variable. It affects both the variables 50%, meaning while before the moderating effect, the impact is can easily be seen, and the 50% effect is being drawn towards workforce diversity in the given problem, and the 50% impact is being given to the organizational effectiveness in the given problem. So once we are talking about the moderating effect, in moderating case we identify that the relationship of independent and dependent variable get moderated, get affected with the presence of one variable which is known as the moderating one, which affects independent and dependent variables simultaneously. हम ये नहीं identify कर सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, बल्कि हम उसकी इन दोनों की जो रिलेशनशिप का जो एरो है उसके ऊपर हम इसको प्रेजेंट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर एग्जिस्ट करता है इसका इम्पैक्ट. And then is the intervening one, or which is also known as the mediating variable. In mediating case, as it has been shown to you, that this particular relationship purely derived from one variable and affects the dependent one. So without the intervening one, we can easily fix our focus from one area to the other, meaning workforce diversity से को हम directly relate कर सकते हैं organization effectiveness के साथ. लेकिन जब हमारे पास एग्जिस्ट करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल, तो वो इन दोनों के इफेक्ट को मीडिएट कर देता है, इंटरवेन कर देता है. यानी कि एक चीज़ ऑलरेडी एक प्रोसेस स्मूथ चल रहा है, लेकिन उसके अंदर आप इंटरफेरेंस क्रिएट कर दें किसी चीज़ की. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इफ देयर इज सर्किट और सर्किट के अंदर एक लाइट बल्ब एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप उस सर्किट को 2 पॉइंट से या 1 पॉइंट से ब्रेक करके उसके अंदर एक और लाइट बल्ब प्लेस करें, तो डेफिनेटली उनकी जो वोल्टेज है या उस करंट के फ्लो के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज तो आएगा. इसका मतलब ये है कि हमने वो जो एक सर्किट डेवलप किया है, वो जो एक रिलेशनशिप डेवलप की हुई है, उसके अंदर कुछ इंटरवेंशंस क्रिएट कर दी हैं, कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट कर दी है, और वो इंटरफेरेंस शो होती है with mediating variable. And in current example, it has been shown towards creative synergy,
which is derived from the workforce diversity. So here creative synergy has been derived from workforce diversity. अब workforce diversity एक ऐसा variable है जो कि directly affect कर रहा था organization effectiveness को, लेकिन जब क्रिएटिव सिनर्जी का कॉन्सेप्ट या क्रिएटिव सिनर्जी को उसने रिवील किया है, रिलीव किया है, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस हैं these required to be noted. So that is something which is actually the intervention of one variable in the given stream of process of the relationship. So that is something which describes the mediating role. So now if we know that what is the problem statement and what are the types of variables which are existing and what each variable type actually explains, now we are in a position to identify the features for developing the theoretical framework. Now there exist 5 very important features of developing the theoretical framework. One is identifying and labeling the variables. सबसे जो important area थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए है वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है वेरिएबल्स को। लेबलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें उनको कोई नाम देना है, बल्कि लेबलिंग का मतलब ये है कि हमें ये पता लगाना है कि इन वेरिएबल्स में से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, क्या इसके अंदर कोई मीडिएटिंग रिलेशनशिप है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि मॉडरेट करता है रिलेशनशिप को। सो ये 4 चीज़ें जो है हमने एनालाइज करनी है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हमारे गिवन स्टेटमेंट को, हमारे गिवन एरिया ऑफ कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स को, और फिर हम उनको लेबल करेंगे कि कौन सा वेरिएबल किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। Second important feature of developing theoretical framework is to state the relationship between the variables. अब हमें दूसरा जो important काम करना है वो हम arrows लगाने वाला जो काम होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है या नहीं है, अगर है तो किस फॉर्म में है, कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं इंडिपेंडेंट की कैटेगरी के अंदर, और क्या वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट को या उनके दरमियान में कोई और किसी और वेरिएबल की एग्जिस्टेंस भी मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पर हम उनकी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं कि वेरिएबल्स की रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरह से डिस्क्राइब हो सकती है। थर्ड एरिया इज थ्योराइजिंग नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। फिर हम बताएंगे कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये किस फॉर्म में हमारे एरिया ऑफ कंसिडरेशन या एरिया ऑफ रिसर्च से रिलेट करती है। तो यहाँ पर हम थ्योराइज करेंगे नेचर ऑफ डायरेक्शन को रिलेशनशिप की। फोर्थ फॉर्म में हम लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई एंड हाउ दीज रिलेशनशिप्स आर एग्जिस्टिंग। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इट यूज टू आंसर मल्टीपल क्वेश्चंस, जिसमें ये 5 मेन की क्वेश्चंस हैं जिसको वो आंसर करता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है या जो फोर्थ एरिया ऑफ कंसिडरेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है या जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो डिस्क्राइब करता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन that why and how these relationships are existing. जब हम एरोज के साथ या अपनी डायग्राम को विद certain directions एक्सप्लेन करते हैं तो हमें उसके पीछे एक लॉजिक की भी ज़रूरत होती है, हमें एक लॉजिक भी ड्रॉ करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सेल्स हमारी पहले हो जाए और हम क्वालिटी को बाद में डिस्कस कर रहे हो। तो डेफिनेटली जो भी उसकी डायरेक्शन है वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होनी चाहिए, और वो लॉजिकल स्ट्रक्चर शुड बी इक्वली अंडरस्टूड एंड इक्वली hold the meaning so that it can be translated in the mind of a researcher as well as the manager towards solving the problem. अगर ये रिलेशनशिप लॉजिकल नहीं होती या इसके अंदर जो लॉजिक्स की कमी होती है, तो फिर हम जब डिडक्शंस करते हैं, जब हम डिड्यूस करते हैं एक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च, तो उसके अंदर बहुत वीक एरियाज शामिल हो जाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इम्प्लीकेशंस नहीं हो सकती, या अगर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं तो उनका इफेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर बात करनी चाहिए सो दैट वी कैन क्रिएट होल्ड ऑन द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम के डेफिनेटली अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उस वक्त ही पॉसिबल होगा जब हम लॉजिकली डिस्क्राइब करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, और जब हम उसके हर सफेयर के ऊपर
या हर रिलेशनशिप के ऊपर एक मीनिंग ड्रॉ करेंगे, एंड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट मीनिंग वी आर एक्चुअली रिक्वायरिंग सर्टेन implications which might be there in future. So these future implications will be solving the problem actually. So if these implications and if this logical relationship is not there, there will be arguments while facing the problem, or while while applying the solution towards the problem practically. Then comes the developing a schematic diagram. उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है रिलेशनशिप्स को भी, और हमने हर एरिया को, हर वेरिएबल को डायरेक्शन भी दे दी है और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर लिया है, फिर हम उसको एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि जी ये वेरिएबल्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनके दरमियान में ये इंटरवेंशंस, मीडिएशंस या मॉडरेशंस एग्जिस्ट करती हैं और ये अफेक्ट करती हैं हमारे वेरिएबल, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इस फॉर्मेट में. सो दैट इज समथिंग विच इज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमने लिस्ट करने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो क्रॉस कल्चरल research indicates the managerial values govern the process, govern the power distance between supervisor and subordinate. ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम फोकस करना चाह रहे हैं कि cross cultural research indicates the managerial values govern the power distance between supervisor and subordinate. ये एक statement, problem statement है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उससे ये पता लगा है, जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उससे ये पता लगा है कि मैनेजरियल वैल्यूज या जो मैनेजर की एग्जिस्टेंस है और जो मैनेजर की एक्सपर्टीज है, जो मैनेजरियल वैल्यूज हैं वो गवर्न करती हैं, वो डायरेक्ट करती हैं पावर डिस्टेंस. पावर डिस्टेंस का मतलब ये है कि which exist between the genders or between the cross cultures sometimes which affects the work performance. जब हम meaning अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं जेंडर की, फॉर एग्जांपल, तो एक डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है एट द वर्क फोर्स व्हेन मेन एंड मेल एंड फीमेल्स आर वर्किंग टुगेदर. So there exists a distance, but if this distance is affecting the productivity or is it not affecting the productivity, this has been governed by the managerial values. ये चीज़ यहाँ पर given है, ये चीज़ यहाँ पर explain हुई है. Govern the power distance between supervisor and subordinates. तो तीन चार एरियाज जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हैं. एक तो ये कि हम बात कर रहे हैं कि पावर डिस्टेंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स जो है वो मैनेजरियल वैल्यूज उसको गवर्न करती हैं, उसको डायरेक्ट करती हैं. तो देयरफॉर द मैनेजर इज बेसिकली इन एन हायरार्की. अगर हम एक हायरार्की को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैनेजर एग्जिस्ट करता है, मैनेजर लाइज इन बिफोर द सुपरवाइजर और अबव द सुपरवाइजर. ये जो सेंटर आपका जो शो हो रहा है इस पिरामिड का, यहाँ पर मैनेजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्ट्रीमलाइन करते हैं एक्टिविटीज को. और ये जो आपकी लोअर पोर्शन ऑफ और द लोएस्ट पोर्शन ऑफ पिरामिड शो हो रहा है, दिस इज बेसिकली this indicates the actual working area और working points को शो करता है जहाँ पर सुपरवाइजर्स जो हैं वो टेक केयर करते हैं काम की. तो हमने यहाँ पर एड्रेस किया है कि जब भी मैनेजरियल वैल्यूज एग्जिस्ट हो, जब भी सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान में हम पावर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो गवर्न होता है, वो कैलकुलेट हो सकता है मैनेजरियल वैल्यूज के साथ. और क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो है उसने ये चीज़ हमें शो की है कि जब हम मल्टीपल कल्चर्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि सुपरवाइजर की और सबऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप है या जो उनका जो पावर डिस्टेंस है वो मैनेजरियल वैल्यूज कंट्रोल करती हैं. सो देयरफॉर दिस इज वन स्टेटमेंट जिसके ऊपर अगर आप खुद से एनालाइज करें कि इसके अंदर अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है तो यहाँ से हमें पता लग सकता है कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. डेफिनेटली इट इज़ बीन वेरी मच क्लियर कि जो पावर डिस्टेंस है
वो बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, वो एक डिपेंडेंट एरिया है जिसको हमने स्टडी करना है, और वो अफेक्ट हो रहा है मैनेजरियल वैल्यूज से। तो मैनेजरियल वैल्यूज को हम स्टडी करेंगे विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉस कल्चर। सो क्रॉस कल्चर अफेक्ट्स द पावर डिस्टेंस ऑफ सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट विच इज अफेक्टेड बाय द मैनेजरियल वैल्यूज। तो यहाँ से हम एक जनरलाइज कर सकते हैं सिचुएशन को कि हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं वो है पावर डिस्टेंस बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, और जो मैनेजरियल वैल्यूज हैं दीज आर इंटरवेनिंग बिटवीन द क्रॉस कल्चर एंड द पावर डिस्टेंस। सो दैट इज समथिंग विच डिस्क्राइब्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ से हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पता लग गए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि a manager believes that good supervision and training would increase the production level of the workers। कि मैनेजर जो है उसका ये मानना है कि अच्छी सुपरविजन अगर होगी तो और ट्रेनिंग अगर होगी तो प्रोडक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम बात करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, या वी वांट टू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद सुपरविजन एंड ट्रेनिंग, right? So if there is training and if there is supervision, that will be related, that will increase production or that will increase productivity level of the workers. So that is something which is a belief of a manager. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हम विच इज़ अ कंपैरेटिवली सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस वन, इसमें हमने ये देखा है कि जो मैनेजर है वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि सुपरवाइजर और गुड सुपरविजन और ट्रेनिंग ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन लेवल ऑफ वर्कर्स को। तो PLW अगर हमने कैलकुलेट करना हो, प्रोडक्शन लेवल ऑफ वर्कर अगर हमने कैलकुलेट करना हो, तो वो गुड सुपरविजन और ट्रेनिंग से एनालाइज किया जा सकता है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल के अ मैनेजर फाइंड्स दैट ऑफ द जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। कि ऑफ जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग जो है उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक मेजर रोल है, एक मेजर इम्पैक्ट है, बट ही वांट टू नो दैट productivity of the employees in his department. However, he also observes that employees over 50 years of age do not seem to derive much benefit and do not improve from such training. तो इसका मतलब ये है कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो है, which derives a very very simple relationship between two variables कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग is affecting productivity of employees, राइट? ऑफ जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। ये दो एरियाज हमारे पास क्लियर हो गए हैं, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास क्लियर हो गए हैं कि इंडिपेंडेंटली हम एनालाइज कर रहे हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग का इम्पैक्ट और इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग का टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन इसके अंदर जो इफेक्ट मॉडरेट हो जाता है, जो रिलेशनशिप मॉडरेट हो जाती है, वो ये हो जाता है कि 50% ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एज कि एज का जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता कि अगर एज जो है वो 50% से ज़्यादा है, 50 ईयर्स से ज़्यादा है, तो फिर ये वाला जो फार्मूला है ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वो सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी की उतनी ही रहेगी। So therefore, this particular variable that is the age का जो category है, if it is higher than 50 or if it is lower than 50, तो इसका मतलब ये है कि एक specific area के अंदर exist करती है। तो अगर हमारे पास age 50 years से ज़्यादा होगी तो हमारे पास relationship कुछ और होगी इन दोनों variables में, और अगर हम 50 years से कम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं ये एक equation या ये एक formula, तो इसके ऊपर जो कंसिडरेशन है वो डिफरेंट होगी। सो दैट इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और जिसकी बेसिस के ऊपर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। नाउ हियर ये जो भी हमने एग्जांपल देखी है इससे हमें पता लग रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है इज वेरी मच क्लियर कि प्रोडक्टिविटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑफ द जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि और ये आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर भी हो रहा है कि ऑफ जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज़ 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज के हैं वो अगर यहाँ पर मॉडरेट करते हैं इस रिलेशनशिप को, यानी कि ये रिलेशनशिप ऐसी नहीं रहेगी अगर इसके अंदर एज का फैक्टर शामिल हो जाता है। तो यही वाली चीज़ हमने इससे पहले भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जो भी वेरिएबल इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, ये ना तो ऑफ जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग को अफेक्ट करिए एज,
ना ही प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। कि जब भी हम इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पर हम फोकस करते हैं, वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये पर्टिकुलर एरिया एक ऐसा है जो कि इस रिलेशनशिप को, अगर इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर रिलेशनशिप बनाए तो इस रिलेशनशिप को जो चीज़ अफेक्ट करती है वो एज फैक्टर है। कि वो लोग जो कि 50 ईयर से ज़्यादा हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग का कोई खास असर नहीं होगा, उनकी उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी जितनी कि बिफोर ट्रेनिंग थी। और लेकिन वो लोग जिनकी एज 50 से कम है उनकी डेफिनेटली चेंज हो सकती है परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द वर्क पॉइंट। सो दैट इज समथिंग विच इज बीन शोन एंड आई होप कि ये वाली कंसिडरेशन अब आपको क्लियर होगी। इससे पहले जो हमने बात की थी इंटरवेनिंग वेरिएबल की, जो सिचुएशन 2 के अंदर मेंशन है कि सिचुएशन 1 में हमने बात की है कि मोटिवेशन टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है वर्क मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क के ऊपर। कि इफ एन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड सो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। तो या हम मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन जो मोटिवेशन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो रहा। मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए, यस मोटिवेशन इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, बट मोटिवेशन इज नॉट अ काइंड ऑफ फैक्टर विच इज क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। सो मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग एट द बैक। मोटिवेशन इज नॉट अ काइंड ऑफ फीलिंग विच इज क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। तो उसके लिए हमें बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज देयर टू सपोर्ट इट। व्हाट इज देयर विच इज क्रिएटिंग और विच इज हार्मिंग मोटिवेशन। या तो कोई ऐसा फैक्टर होगा जो मोटिवेशन को क्रिएट कर रहा है, या एक ऐसा फैक्टर होगा जो उसको क्रिएट नहीं कर रहा। तो बेसिकली मोटिवेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, मोटिवेशन एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो कि क्रिएट होता है जॉब चैलेंज से। जिन लोगों के लिए जॉब एज चैलेंज होती है उनके लिए मोटिवेशन होगी और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जिनके लिए जॉब एज चैलेंज एग्जिस्ट नहीं करती उनके लिए मोटिवेशन नहीं होगी। सो बेसिकली व्हाट इज अफेक्टिंग हियर, व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड हियर इज मोटिवेशन। सो व्हेन वी आर ड्राइंग एन इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स परफॉर्मेंस वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो जॉब चैलेंज है वो मोटिवेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अगर वो उसे पॉजिटिवली अफेक्ट करता है तो उस केस में जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ और इम्पैक्ट आएगा, और अगर वो उसे नेगेटिवली अफेक्ट करता है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ और इम्पैक्ट आएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज द अश्योरेंस दैट विच वेरिएबल शुड लाई इन विच कैटेगरी। सो हियर if we take that motivation as a moderating variable, तो उस केस में the performance of employee with low levels of motivation to work will not improve despite increase in job challenge। यहाँ पर हम मोटिवेशन को मॉडरेटिंग वेरिएबल भी बना सकते हैं। अगर हमने अपना मॉडल को थोड़ा सा चेंज करना है तो वो इस तरह से हो सकते हैं कि जॉब चैलेंज और परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि जॉब चैलेंज किस तरह से परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, और हम मोटिवेशन को उसके अंदर से निकाल लें और कहें कि जी मोटिवेशन sometimes affects the job challenge and performance both। So in that case जब हम एक्सप्लेन करेंगे अपने वेरिएबल को या लॉजिकली डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर हम मोटिवेशन को वेटेज देंगे टुवर्ड्स द मॉडरेटिंग इफेक्ट। Now we are in a position to create a hypothesis. Now we are in a position to develop a hypothesis। कि अब हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर आ गए हैं जब हम हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर सकते हैं कि हमने वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी रिलेशनशिप के ऊपर भी बात कर ली है, और हर वेरिएबल की जो टिपोलॉजी है या बेसिकली जो उसकी टाइप है वो किस तरह से अफेक्ट करती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, हमने उसके ऊपर भी डिस्कशन कर ली है। Now once we have identified the important variables in the situation and established a relationship among them through logical reasoning in the theoretical framework, we are now in a position to test whether the relationship that have been theorized so in fact hold true or not। So formulating such testable statements is called hypothesis development। Statistically हमने hypothesis development बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है। Now if we are applied with a situation,
और उस सिचुएशन की बेसिस के ऊपर अगर हमने हाइपोथेसिस बनाना हो, एक फंक्शन बनाना हो और वहां से हमने एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनानी हो जिसको हमने स्टडी करना हो, सो दैट इज समथिंग विच इज द डोमेन ऑफ स्टडी हियर। इससे पहले जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी तो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से एक गिवन हाइपोथेसिस विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन हमने पिन पॉइंट किया था और हमने देखा था कि जी ये मीन जो है ये दिस म्यू ऑफ पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू द सैंपल मीन और नॉट, और दिस population mean is not equals to population mean, it's not equals to sample mean, या it is higher or greater than, तो ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, इनके इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन कर ली है। लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है और उसकी बेसिस के ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है, तो यहाँ से हम बेसिकली रिलेशनशिप, क्योंकि अब हमें पता है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, अब हमने डिस्पाइट ऑफ डिस्कसिंग द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, वी आर इन अ पोजिशन to basically numerically describe the variable existence. For example, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है QWL, which is जॉब पॉइंट के ऊपर जो भी जिस भी किस्म की हमें सिनेरियो मिलता है, so quality of work life affects the productivity. ये एक अगर हमने एरिया डिस्कस किया था, तो इस केस में हमने प्रोडक्टिविटी को स्टडी करने की कोशिश की है। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने प्रोडक्टिविटी को रीड करना है, अगर हमने प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करना है, तो हमें बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को स्टडी करना होगा। सो देयरफॉर वी कैन से that productivity is a function of quality of work life is a function of productivity, कि जब हम quality of work life को या हम कहते हैं कि जी productivity is determined through quality of work life, which states that any change in quality of work life will reveal its changes on productivity. So as it is shown in the equation that we are in a hypothetical situation कि जहाँ पर हमने quality of work life को के फंक्शन को प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया है, और यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के फंक्शन को मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जब हम इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक्सप्लेन होती है जॉब टाइमिंग से, सैलरी से, या मशीन ओरिएंटेशन से, या एम्प्लॉय रिलेशनशिप से। तो ये 3-4 फैक्टर्स अगर हमने डिस्क्राइब किए हैं कि ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर स्टेट कर देंगे ये सारे वेरिएबल्स और हम इनका इम्पैक्ट देखेंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सो यहाँ पर से हमने थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बना दिया है इस सब्जेक्टिव अप्रोच को, और हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक शेपन कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन सो दैट इट कैन बी टेस्टेड through hypothesis. So a hypothesis can be defined as a logical conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो टेस्टेबल हो गई है कि क्या ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वाकई प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, और अगर करती है तो किन एरियाज में ज़्यादा करती है और किन एरियाज में नहीं करती। सो बेसिकली हमने एक लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराई है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट की है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, जिसको हमने एक टेस्टेबल स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंशन किया। There exist multiple formats of hypothesis statements. One statement is if and then statement. एक जो फॉर्मेट है हाइपोथेसिस का, जब हम उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताते हैं, हाइपोथेसिस को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उस केस में बेसिकली जो हाइपोथेसिस है हमारा वो हर वेरिएबल की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। कि अगर हमने कहा है कि जी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के अंदर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को फिक्स किया है, लाइक एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या सैलरीज है। सो we'll be describing कि if और then statement के थ्रू अगर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो एक वेरिएबल जैसे एम्प्लॉय रिलेशनशिप है हमने उठाया है कि if employee relationship is good then productivity will be good. So in that case if and then statement हमें एक hypothesis describe हुआ बता रही है, like if employee are more healthy they will take less sick leaves. तो इसका मतलब ये है कि if और then की स्टेटमेंट के ऊपर हमने अपनी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया है, अपने हाइपोथेसिस को बताया है। यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं कि इफ एम्प्लॉयज आर हेल्दी, तो हमने हेल्थ एक फैक्टर उठाया है जिसको हमने एम्प्लॉयज के साथ रिलेट किया है, और
उसको डेवलप किया है एक रिलेशनशिप के साथ कि जी ये सिक लीव्स की परसेंटेज के ऊपर इंक्रीमेंट करेगा या उसको डिक्रीज करेगा। दूसरा ये कि ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें आपको पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो है वो हाइपोथेसिस मूव हो रहा है। दैट इज फॉर एग्जांपल वुमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मेन, और द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन जॉब लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप की बात पता लग रही है, डायरेक्शन पता लग रही है कि वुमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मेन। तो इसका मतलब है कि आदमी कम मोटिवेटेड होते हैं और वुमेन जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड होती है, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू। एंड सेकेंडली, द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा जॉब पॉइंट के ऊपर उतना कम job satisfaction hogi. So if we are increasing the level of stress at job, we are reducing, what the outcome we are talking about, if job satisfaction is the outcome, so that will be reduced. So there is a negative relationship between job stress and job satisfaction. There is a relationship between age and job satisfaction as well, and there is a difference between the work ethics values of America and Asian employees as well. तो यहाँ से भी हमें नॉन डायरेक्शनल का आइडिया होता है कि अगर हमें ये हमें डायरेक्शंस बता रही हैं कि वुमेन आर मोर मोटिवेटेड, लेकिन अगर हम नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी एज और जॉब सेटिस्फेक्शन में कुछ रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप हमें क्लियर नहीं है, कि हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो इस वजह से हमने कहा है कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है और इसमें द डायरेक्शन इज नॉट क्लियर एज सच। सो हियर अनदर एग्जांपल इज कि जो वर्कफोर्स एथिक्स हैं बिटवीन अमेरिकन एंड एशियन एम्प्लॉयज, सो दैट इज आल्सो नॉट एविडेंटली डिस्क्राइब्ड हियर through the statement, which need to be discussed through a research work definitely, but through the statement they are not being described. लेकिन एक hypothesis statement है जिसके अंदर हम relationship के ऊपर बात कर सकते हैं work ethics के ऊपर amongst the American and Asian employees. Then comes the null and alternative hypothesis, जिसको हमने hypothesis development में, hypothesis testing में statistical terms में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि बेसिकली नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या पिक्चर क्लियर करते हैं towards the development of a problem statement, through a problem statement. Now in null hypothesis, we talk about a proposition that states a definite or exact relationship between two variables. When nothing has been applied, when no converses and inverses have been applied, whatever is the exact relationship, this has been shown through the null hypothesis. So null hypothesis is a proposition that states a definite or exact relationship between two variables. That is stated as it is derived from the problem statement. इसके अंदर हम कोई भी रिलेशनशिप को हम चेंज नहीं करते, जो भी रिलेशनशिप हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से या हाइपोथेसिस से मिलती है हम उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा नल हाइपोथेसिस बन जाएगा. That is, it stated that the population correlation between two variables is equal to 0 or some definite number. तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर कोई changes नहीं लाते, as it is the relationship which is shown is described. The alternative hypothesis, which is the opposite of the null, is a statement expressing a relationship between two variables or indicating difference between two groups. अब जो भी relationship null के अंदर describe हुई भी है उसको अगर हम opposite कर दें या उसको inverse ले लें तो वो हमारे पास alternative hypothesis बन जाएगा, जिसको हम यूँ show कर सकते हैं कि H naught अगर हमारे पास mu of mean of male is equivalent to mean of male in population is equivalent to mean of women in population. So H naught describes that there is no difference between the two, meaning there is no difference in means between the two factors, between the two genders. But in alternate one we says that if there is no difference stated in null hypothesis, there might be some the difference which exists in the alternate hypothesis, which is shown through that either the mean of male is less than a mean of female or it is greater than the female one. So that is something which is described through directional and non-directional hypothesis, कि जब हमारे पास directional hypothesis होगा तो H naught हमारे पास equivalent to 0 होगा
और नॉन डायरेक्शनल के केस में भी h नॉट हमारे पास h नॉट ऑफ p इज इक्वल टू 0. लेकिन जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शनल के केस में it will gives p greater than 0 or that is alternate hypothesis or it will be greater than 0 or alternative hypothesis will be less than 0. जब हमारे पास ग्रुप डिफरेंस की बात आती है, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल नॉट ग्रेटर देन और लेस देन का केस होगा. जब हम ग्रुप डिफरेंसेस की बात करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिफरेंसेस, तो डायरेक्शनल के केस में नल हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स दैट h नॉट शुड बी इक्वल टू mu of a should be equivalent to mu of b, where the alternate hypothesis states that mu of a should be greater than mu of b, or it should be less than the other mean. In the group difference, when we are stated with the non-directional, the alternate hypothesis is not equivalent to 0. This is not equivalent to 0, whereas in group difference, the non-directional alternate hypothesis is also not equivalent to 0, but it will states that mu of a should not be equivalent to mu of b. So in hypothesis testing, we need to formulate the 5-step model, which is the similar 5-step traditional analysis. जिसके अंदर first step के अंदर हम state करते हैं null or alternate hypothesis. Second step में we choose appropriate test depending on the nature of data collected. इसके अंदर हम t के ऊपर भी बात कर सकते हैं, z distribution की भी बात कर सकते हैं. अगर हमने दो या multiple groups के variances को compare करना है तो हम ANOVA की भी बात करते हैं और f distribution की भी बात कर सकते हैं. Then we talk about the level of significance कि वो 95 है या 99 है या 90% है. Then analyze the critical values either from the computer or table. फिर हम critical values को critical region को describe करते हैं, वो values जो कि हमने table से उठाई हैं या कंप्यूटर से निकाली हैं, which are the similar tabulated values. और फिर हम conclusions या deductions draw करते हैं that whether we are accepting the results of null and alternate hypothesis or rejecting them. So that is the domain of hypothesis testing, which is as it is we have discussed in the statistical framework, in the statistical areas. Now in today's class we have discussed that what is actually the relevance of developing a theoretical framework towards research. That whenever we need to conduct research, what is the need and purpose of creating the theoretical framework and what actually the theoretical framework stands for. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, उसमें हम किन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. डेफिनेटली उसके अंदर हम वेरिएबल्स को और उनकी डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं. उसके अंदर हम लॉजिकली डिस्क्राइब करते हैं कि किस किस्म की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर ये पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है या ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं ये हम रिड्यूस करते हैं लिटरेचर रिव्यू से या एम्पेरिकल स्टडी से, और वहाँ से जो हमारे पास combination of variables exist करता है in the form of dependent, independent, intervening and moderating variables के form में, उसको हम explain करते हैं, उसको हम hypothetical statements के through explain करते हैं और उसको हम testable statement की form में describe करते हैं, which is known as hypothesis testing. So that is all for today. I hope कि इस लेक्चर के बाद अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि लिटरेचर रिव्यू की बेसिस के ऊपर हम अपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को किस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं. सो फॉर till that today's lecture we have taken into account 3 major perspectives of our research process, that is that ends towards the theoretical framework. So the theoretical framework is basically the model development, and the model development is the key area, is the key notion for the research work. So thank you so much for this time, and thank you so much for the patience for listening. I hope that the concepts are clear to you. See you in other lecture where we'll be discussing some more interesting issues towards research. Thank you so much. Allah Hafiz.